Where you have done? Yes. Ma'am, in 10th. Acha, you have done? 10th class. Yes, Okay. ma'am. And it is like A, B, C, D. A is true, B is false. 9th also. Okay, okay. Then no problem. This is your question pattern. Syllabus is units and dimensions with errors. Motion in straight line we have just finished. Motion in plane we are just starting. ठीक है? It is already 10:18. Those who are joining late, they should note it down from others. Now we have to start motion in plane. Motion in straight line we have done. That is your motion in one dimension we have done. Now you have to start motion in 2 and 3 dimensions. For this we need vectors. You are having all our topics are related to physical quantities. Physical quantities you all know. Physical quantities are force, velocity, pressure like this. ये सारे physical quantities है. Chemical quantities are different. Yes or no? Chemical quantities Yes. are different. Physical quantities means their Yes, ma'am. physical properties are observed. These physical quantities, they need both directions and magnitude for their expression. If then it is vectors. You are having two terms. One is your scalars, the other one is your vectors. Scalars are physical quantities which need only magnitude. Physical quantities which need only magnitude are scalars. Vectors are physical quantities which need both magnitude and direction, which needs both magnitude and direction. Both magnitude and directions. What? Physical quantities which needs both magnitude and direction for complete description. For complete description are vectors. ये इसका यूजुअल डेफिनेशन है. What are vectors? These are physical quantities which need both and magnitude and directions for their complete description. The most common example is distance here, and in vectors you can write the counterpart displacement. Okay, displacement is the shortest distance that is in a particular direction, hence displacement is vector. Distance is scalar. In the same way, speed and velocity, tell me where it will come. Velocity. Speed is scalar and velocity is vector. As force and pressure. Force is vector and pressure is scalar. Pressure is scalar. Are vectors. And both are Yes, tell me. vectors. प्रेशर भी ना वेक्टर होना चाहिए. Both are vectors. Force and pressure. Momentum and impulse. Momentum is Momentum vector. is also vector. Momentum is vector. Yes, ma'am. Impulse. Vector. Also vector. Both are vectors. Electric current and work done. Electric current current is is scalar. Scalar. Electric Ma'am, current is current scalar. is scalar. Not audible. Anyone can tell? Ma'am, current is scalar. Work is vector. No, One is vector. you are wrong. Both are scalar. Both are scalars. Current having particular direction and magnitude, work having particular direction and magnitude, but both are scalars. We will come across this question. These two things are having both magnitude and direction. Still they are scalars. Okay? ये हमारे स्केलर प्रोडक्ट बेस्ड होता है. डॉट प्रोडक्ट बेस्ड होता है. Now, how the vectors are represented? Vectors are represented like this. Suppose A is a vector. This is called the vector directions. इसके नाम है arrow. It should have an arrow. One arrow is having two things. This one is known as head.
and this one is known as tail. A vector can be represented as A modulus, that means it is unit magnitude value, and A cap. A cap means unit vector. This is known as this is read as A modulus, and this is read as A cap. A modulus means magnitude only. This is only magnitude. A modulus means magnitude. A cap means direction. Okay? Vectors are represented like this. Vectors are always represented with an arrow. A is a vector. It has two things, A modulus and A cap, magnitude and directions. Okay? It is okay? Understood? Yes, ma'am. Next you come to types of vectors. Yes, ma'am. Types of vectors. We are having different types of vectors. Tell me, what are the two major types of vectors? Those you have done earlier. Two major types are दो types होते हैं. One is your polar vector, the other one is your axial vectors. There are two major types of vectors. One is your polar vectors. Polar vectors वो होते हैं those who have an origin or point of application. Vectors having origin or point of application. Point of application, कोई एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको पोलर वेक्टर बोला जाता है. आप कोई भी वेक्टर ले लो, फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे पोलर वेक्टर के रेंज में आएंगे. वी आर हैविंग एक्सियल वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स. दे गिव यू रोटेशनल इफेक्ट. दीज वेक्टर्स गिव्स यू रोटेशनल इफेक्ट. इसका कोई ओरिजिनल नहीं होता. रोटेशनल इफेक्ट ना. इसी सपोज दिस इज ए डिस्क. ये डिस्क कैसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज. इसके अंदर में एक रॉड है, ठीक है. इफ यू अप्लाई दिस, सपोज ये इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, आपके लिए क्लॉकवाइज है, ऐसा नो. सपोज ये इसे Yes, ma'am. सपोज ये इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. दिस इज द डायरेक्शन गिवन. ये आपका थंब कौन सी डायरेक्शन देता है? थंब रूल पढ़े होगे Downward. 10th क्लास में. थंब रूल पढ़े होगे. If this is these fingers give you the direction of current, this gives, thumb gives you the direction of, yes anyone, thumb gives, those who are joining late, Electric current. you have missed the syllabus and marking distribution. Many students are joining late. हम 20 से स्टार्ट किए थे, अब 32 है. 10-15 तक नींद नहीं खुला है. दिस वन इज योर एक्सियल वेक्टर. ये इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. इसका जो है ये वाला जो, सपोज आप इसको मैग्नेटिक फील्ड देते हो, ये करंट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है. ऐसे आपका एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल आपके पास बहुत ही है. एंगुलर वेलोसिटी, जितने एंगुलर फैमिली होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फोर्स, ये सारे आपका एक्सियल वेक्टर्स होते हैं. अंडरस्टूड? Vectors are divided in two categories mainly. One is your polar vector, the other one is your axial vector. ठीक है? Ma'am, is magnetic field a vector? Magnetic field is a vector. सारे field vector है. Gravitational field, magnetic field, electric field, except nuclear field and temperature field. Two fields are scalar. Temperature field and nuclear field. All other fields are vector. In your syllabus I am telling. ठीक है. जैसे आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरे एंड तक चलेगा, 12th के एंड तक चलेगा. आपका डायमेंशंस यूनिट्स 12th के एंड तक चलेगा. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा आपको उसका डायमेंशन पूछा जाएगा. ऐसे आपका वेक्टर्स चलेगा. वेक्टर्स विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11th एंड इट विल कंटिन्यू. अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो आपको थ्रू आउट स्टडी इट विल कंटिन्यू. It is a continuous syllabus. Don't think that vectors 11th में हो गया तो हो गया. 12th class mathematics में vectors में you are having 12 exercises in NCERT. फिजिक्स का vectors के क्लास अटेंड करने के बाद बच्चे 12th क्लास के मैथमेटिक्स बुक खरीदते हैं और पूरे 12 को 12 एक्सरसाइज कर देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा vectors हमारे पास है. अंडरस्टूड? तो vectors अभी भी 12th क्लास के बच्चों का जो मेजर मार्क्स कटिंग हुआ है
Last exam में it is because of vectors. They don't know the proper application of vectors. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गया. नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस वेक्टर. वेक्टर अलजेब्रा में हम कितने टाइप्स के, मेनली हम पोलर वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स ले रहे हैं. पोलर वेक्टर्स का डिफरेंट टाइप्स ले रहे हैं. टाइप्स ऑफ पोलर वेक्टर्स, इसमें से आपके पास आ जाएगा नंबर 1 यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द नेम इटसेल्फ गिव्स यू मैग्नीट्यूड इज, टेल मी, मैग्नीट्यूड इज 1. 1 unit. Magnitude is 1 unit and having direction is your unit vector. I, j, k. I is unit vector along x-axis. I is your unit vector along x-axis. J is your unit vector. Unit vector means इसके ऊपर ऐसे कैप दिया जाएगा. J is your unit vector along y-axis. Y-axis. K is your unit vector along Z-axis. तो एक्स वाई जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होंगे वो आई जे के में होंगे. 3 टर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड हियर. आई जे के यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस. इफ दीस 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर्यन वेयर आर यू? आई होप यू आर राइटिंग. ऑल अदर्स यू शुड राइट आल्सो. Yes, ma'am, writing. अगर आपको राइटिंग में टाइम चाहिए देन टेल मी, आई विल गिव यू टाइम. If these 3 vectors are represented with mutual perpendicular direction x, y, z, x, y, z, इसमें से आपका I वेक्टर यहाँ है, J वेक्टर यहाँ है and K वेक्टर यहाँ है. These 3 are known as, yes, anyone who can tell me? ये तीनों वेक्टर्स के नाम. यूनिट वेक्टर्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. If they are mutually perpendicular, they are known as orthogonal vectors. They are known as orthogonal vectors. If these 3 are mutually perpendicular, they are known as orthogonal vectors. ठीक है? The vectors are mutually perpendicular to each other, then they are known as orthogonal vectors. Unit vectors over. Next is your second is your null vector. How can you define null vector? इसका magnitude कितना होगा? Null vector 0. magnitude is 0. Magnitude is 0, but it gives direction. It gives direction. Aryan लिख रहे हो? Others, most of the students have already covered it. Yes, ma'am. It gives direction. Those who have not done earlier, they should write it down. Akshita, are you writing? Yes, Akshita, ma'am. Aishwarya, Yes, Akanksha, ma'am. भव्य भारद्वाज. वीडियो ऑन किए तो अच्छा था ना? Ma'am. Yes, tell me. Ma'am, unit vector along x-axis is upper cap I. अगर और if unit vector along negative x-axis, then it will be minus I upper cap. Minus I cap is minus j cap minus k cap. ठीक है? तो null Yes, vector magnitude is 0. It gives direction. Give me an example of null vector. आता है? अगर आपके पास 2 वेक्टर है, a is a vector, a वेक्टर से आप माइनस a कर रहे हो, then it is 0, but it is a vector. This is a null vector. क्योंकि इसके पास डायरेक्शन रहेगा. 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर माइनस कर रहे हो, ये 0 किलोमीटर होगा, 0 रुपीज नहीं होगा. तो 0 किलोमीटर, दैट मीन्स 0 is the magnitude, kilometer is the unit. Magnitude and direction. 5 kilometer towards north, 5 kilometer towards north, 5 kilometer towards north, 0 kilometer towards north. डायरेक्शन हो गया? Yes or no? मैम किलोमीटर मैम डायरेक्शन थोड़ी ना बताते हैं. इसीलिए तो मैंने चेंज कर दिया, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ लिख दिया. ठीक है? -5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ is equivalent to 0 kilometer towards north. Towards north is your direction. Okay, Gautam. Gautam, is it okay? Who has asked this question? Ma'am, what is the definition of null vector? Null vector is the vector having
जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इज जीरो बट इट गिव्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज जीरो बट इट गिव्स डायरेक्शन। एनी मोर डाउट? Null vector. Yes, tell me. No, ma'am. Ma'am, if an object is moving with a uniform velocity, then its acceleration vector will be zero vector. Yes. Acceleration vector will be your null vector. Good example. Who has given it? नाम बताते चलो. हिमांशु. Next. Types of polar vectors we are continuing. Types of polar vectors we are continuing. Now you tell me, there are different types of vectors we can have here. Axial and polar के बाद we are having null and unit vectors. Now come to different types of vectors. One is your this name co. Co का meaning क्या है? Anyone who can tell me? Cooperation में co का meaning क्या है? No idea. You are having co-initial. You are having co-terminus vectors. Ma'am, corresponding. You are having co-planar. बताओ co का correspond. You are having Corresponding. co-linear. इसमें cooperation में co का meaning क्या है? The word is same. इसका meaning same होता है. I'm involving two quantities. Same initial, same point होता है. Co का meaning similar origin. Same point से start होता है. Co-initial vectors. What are co-initial vectors? बहुत सारे vectors अगर एक ही point से start करते हैं. ये देखो vectors is moving in this direction but all are starting from this point. Then these are co-initial. सबका initial point same है. Okay? Understood? Yes, ma'am. Co-initial. Co-terminus you can guess now. Co-terminus का meaning क्या होगा? Ma'am, जिनके terminal same. जिनके terminal same होंगे. All are terminating at the same point. This is co-terminus vectors. Co-terminus. Understood? Co-terminus. Co-initial. Any doubt? Co-initial, co-terminus. No, ma'am. No, ma'am. Next, co-planar. You can now tell. Co-planar. Ma'am, जिनका plane same है. Line जो same एक ही plane. plane में होंगे. जो एक ही plane में होंगे. Here it is your XY. All three vectors are in XY plane. Co-planar. You are having three planes XY, YZ and ZX plane. ये इसको plane बोला जाता है. XY plane, YZ plane, ZX plane. 3 dimensional में. तो if all the vectors are lying in one plane, they are known as coplanar. Then what is collinear? Parallel. They are parallel. They are parallel. They are in the same straight line. Collinear. एक ही straight line में. This is collinear. Are the 4 vectors clear? किसको doubt है? Arav Grewal, you are also joining late. Any doubt here? Ma'am, if two vectors are parallel, then they are collinear. If they are parallel in the same plane, then they are coplanar. If they are parallel along parallel, ये भी parallel है. They are in the same line, collinear. Collinear means there should be in same line. अगर एक ही plane में parallel है तो coplanar हो जाएगा. Understood? collinear में stress दो line के ऊपर, planar में stress दो plane के ऊपर, terminus में stress दो terminal point, initial में initial point. Understood? Any doubt here? Or Amita? Are you understanding? No. Yes or no? Or Amita, are you understanding? को Yes, के ma'am. साथ मैंने 4 दे दिया. Next, Ansika, are you understanding? Ansika. Ansika, tell me. Okay. Last में आ जाएगा नेटवर्क इशू. किसी को भी डाउट है, you can ask it. क्योंकि ऑलरेडी you are in 11th. पहला 2 चैप्टर के बाद आप 11th में ऑलरेडी आ चुके हो अच्छे से. तो अभी आपको स्पीड बढ़ाना चाहिए समझने का और प्रॉब्लम करने का. नेक्स्ट इज योर यू आर हैविंग इक्वल वेक्टर्स. पहले पैरेलल वेक्टर्स ले लेते हैं. पैरेलल
पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसके साथ साथ समझो व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स, व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, यस और नो? ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, ठीक है? इफ दे हैव ए कांस्टेंट गैप and opposite direction, they have a constant gap in between them but in the same direction, parallel or anti parallel? Any doubt here, Aman? No, ma'am. Next, you are having equal vectors, equal and unequal vectors. You should write down. इतने varieties आपका कोई बुक में नहीं दिया होगा जितने varieties का हम क्लास में करवाते हैं. This is a combination of school, coaching centers and different types of books. सारे वेक्टर्स जो जहां मिलता है हम सारे यहाँ क्लासरूम में दिखा देते हैं. इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर इक्वल. यस, इफ आई ड्रॉ दिस टू वेक्टर्स, क्या क्या कंडीशन होना है? यू कैन टेल मी. इफ आई एम गिविंग यू having same direction, Ma'am, same direction and same magnitude. same direction and same magnitude, same direction and same magnitude. और क्या होना चाहिए? Ma'am, Yes. Plane. ma'am, co-initial and co-terminal, their heads and tails are, ma'am, joining. So, ma'am, is it okay or? को इनिशियल में सारे इसको ज्वाइन कर रहे हैं. या देखो, को इनिशियल में सारे इसका टेल ज्वाइन कर रहा है, को टर्मिनस में सारे हेड ज्वाइन कर रहा है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Ma'am, but two vectors, their heads, no, ma'am, nothing. Understood, ma'am. वेक्टर्स में हेड क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता है? हेड को हेड ज्वाइन कर सकता है, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता है? को टर्मिनस, सारे वेक्टर्स उसी जगह में आ रहे हैं, क्यों नहीं कर सकता है? कोई वेक्टर्स में Ma'am, what is equal? equal vectors are having, someone has already told, they should have same magnitude, they should have same magnitude, same directions, and obviously they will come parallel also, and they should be in any plane. आप इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल सेम डायरेक्शन करके कोई भी प्लेन में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. इक्वल वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अनइक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शंस. इसमें देखो अपोजिट डायरेक्शन है, पैरेलल है और सेम मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड सेटिस्फाइड, पैरेलल सेटिस्फाइड, लेकिन सेम डायरेक्शन नहीं है, तो ये अनइक्वल हो गया. यहाँ देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सेम डायरेक्शन है एंड पैरेलल है, अनइक्वल हो गया. यहाँ देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है एंड पैरेलल, दे आर इक्वल वेक्टर्स. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड अनइक्वल? जस्ट सी द बोर्ड एंड टेल मी. Equal and unequal, I have given you 3 examples for best difference. Now you tell me, what are the conditions for equal vectors? 3 conditions for 2 vectors to be equal. It's a theoretical question. Same magnitude, same direction, and for them to be parallel. Yes. Conditions of vectors to be equal. सबसे ज्यादा जरूरत होता है यही इक्वल वेक्टर्स आपका थ्योरी में. कोई भी वेक्टर कहीं भी दिया हुआ है, यू शुड ड्रॉ ऑन इक्वल वेक्टर्स. कोई भी प्लेन में है, कहीं भी पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं वेक्टर कलेक्शंस. आप वेक्टर सब जो कलेक्शन करोगे तब आपका इक्वल वेक्टर्स जरूरत होगा. ठीक है. नेक्स्ट यू आर हैविंग नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स is if you are having a Ma'am, if vectors. the ma'am, Tell me. ma'am, in unequal vectors, if they are having different, if they are not parallel, then they will have different direction also, no? हाँ, हो सकता है. Okay, ma'am. A is a suppose A वेक्टर का ओरिजिन यही है. दिस इज योर प्लस A, इसी का अपोजिट
एग्जैक्टली इसी के ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये है माइनस है। दिस इज योर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज द वेक्टर, इट इज गिवन along Ma'am, this they are direction, not parallel. they are anti-parallel. Negative vectors are anti-parallel. Yes or no? Tell me, negative vectors are anti-parallel. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, if you're having vectors, अगर कोई चीज वेक्टर है, A is like this, ये A is a vector, आपको पूछा गया 2A कैसे होगा, इसी को बढ़ा दो 2A, 3A कैसे होगा, इसी को बढ़ा दो 3A, आपको बोला गया -4A, -4A, इसको अपोजिट कर दो, दिस इज -4A, 4 गुना ले लो इसमें, -4A, ठीक है। Yes, ma'am. A दिया हुआ है, you can make it 2A, you can make it 3A, you can make it -4A, these are all vectors। आपको डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा, माइनस होगा तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस, ये दोनों आपका एंटी पैरेलल है। ये नहीं कि मैं सिर्फ यही ड्रॉ करूंगी -4A, मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, पैरेलल वेक्टर्स में कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरे वेक्टर्स है, इसका एग्जैक्टली मैं यहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ, दिस 2 वेक्टर्स आर इक्वल, ये मेरे A है, दिस इज ऑल्सो A, दे आर पैरेलल, they are having same magnitude, understood? Parallel vectors, equal vectors मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मुझे जहां जरूरत है, एक वेक्टर्स को उठाना है अभी, understood? Yes or no? Aryan? Yes, ma'am. And what can be the figure for unequal vector and non-parallel? Unequal vectors, non-parallel. You are having 2 vectors, these are parallel, you are telling the vectors are unequal and non-parallel, हाँ, ये वेक्टर है नॉन पैरेलल, ये गैप और ये गैप सेम नहीं है, क्या प्रॉब्लम? वो तो रैंडम है, कुछ भी वेक्टर्स ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसके साथ ये ले लो, ये सारे अनइक्वल वेक्टर्स हैं, नॉन पैरेलल। Kanak, it is your question. Ma'am, अब yes, ma'am. नेक्स्ट यू आर हैविंग, अगर हमारे पास इतने टाइप के वेक्टर्स आ गया, हम सारे वेक्टर्स के बेसिक कर चुके हैं, अगेन आई एम टेलिंग व्हाट आई हैव स्टार्टेड, व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस फॉर कंप्लीट एक्सप्रेशन। उसके बाद इमीडिएटली मैंने क्या किया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इज एनीवन हु कैन आंसर types of vectors? Arav Grewal, if you are in the class, you can tell me how many types of vectors we have started. Arav Grewal. Arav Grewal, no response, wastage of time. Okay, Arav Sharma, if you are here, how many types of vectors we have done? Okay, Akanksha Sharma, how many types I have done? Major categorization of vectors. Akanksha. Polar and axial vectors. Polar and axial vectors. Very good. Mainly there are only 2 types of vectors, polar vectors and axial vectors. Polar vectors के types. Polar vectors के types we have done many. Polar vectors के type. Yes, ma'am. Unit orthogonal Unit, null, Null vector, Anti-parallel. parallel, anti-parallel, Negative. equal vector. Co-initial, co-terminal, co-planar, co-initial, co-terminal, co-planar, collinear. collinear, negative vectors, Equal and equal. yes. parallel and anti-parallel. Orthogonal vectors also we have done. Yes or no? Orthogonal vectors are we have done. ठीक है? Now you are having position vector. One vector is known as your position vector. Position vector means that defines the position of an object. Suppose you are having x, y, z axis. X, y, z. One body is here.
You have to find out the position vector. Position vector means इसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, y से कितना है और z से कितना है. z से कितना है. सपोज ये 3 डायमेंशनल है तो इसका हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk. अगर 2 डायमेंशनल है तो xi प्लस yj. ये बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. इसको बोलते हैं r. r इज द पोजीशन वेक्टर. ये जो r है ना, दिस इज द r. r इज द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर अगर 2 डायमेंशनल एक बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. आप 10th में भी किए होंगे. एक बॉडी यहाँ है, आप इसका साइड में xy दिया जाता है ना. व्हाट इज दिस xy? x इज द x कोऑर्डिनेट वैल्यू. x कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना है एंड y कोऑर्डिनेट वैल्यू. अगर मैंने इसको 5 और 2 लिख दी तो इसका मीनिंग क्या है? x एक्सिस से 5 मीटर डिस्टेंस है एंड y एक्सिस से 2 मीटर डिस्टेंस है. दिस थिंग इज अंडरस्टूड? यस और नो? हियर आपको अगर ये पोजीशन फाइंड, अगर आपको ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है, सपोज a टू b आपको फाइंड आउट करना है. a टू b मेरे पास r है, ये 5 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. आप ऐसे लिखोगे 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट. इज इट अंडरस्टूड? ये सबको समझ में आ गया? अगर आप ये r फाइंड आउट करोगे तो पोजीशन वेक्टर, यहाँ जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो ये 5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर. यहाँ 2 है तो यहाँ आप क्या किए? यहाँ आप इक्वल वेक्टर ले लिए. जैसे यहाँ इक्वल वेक्टर ले लिए, ये 2 ये 2, यहाँ 5 तो यहाँ 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर r हो गया. इन द सेम वे इन द टर्म्स ऑफ x मैं ये 2 डायमेंशन में क्या लिखूंगी? r इज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर. अंडरस्टूड? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया? एनी डाउट हियर? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज x स्क्वायर. क्यों हुआ? एक दोबारा मैं बोल रहा हूँ. आपके पास स्टार्टिंग में देखो यहाँ दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर आपका 2 डायमेंशनल. पहले 2 डायमेंशनल समझो. दिस इज 2 डायमेंशनल. यहाँ एक पार्टिकल है p. p के x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है. p के x कोऑर्डिनेट के जगह हम 5 लिखें और y कोऑर्डिनेट के जगह हम 2 लिखें. आ गया समझ में? x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 2 है. तो x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y कोऑर्डिनेट. अंडरस्टूड? टेल मी यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. तो फिर आप ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो आप एक पूरे स्क्वायर ले लो, ये पूरे रेक्टेंगल ले लो, इसका डायगोनल है. डायगोनल कैसे फाइंड आउट करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप 5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर लिख दिए, आ गया डायगोनल. यस और नो? टेल मी जिसका डाउट था. यस मैम. तो यहाँ r है, ये मेरा x है, ये y है, तो मैं r को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट लिख सकती हूँ. यस Okay. मैम. So this is your magnitude of position vector. Position vector, it is a vector. It has both magnitude and direction. तो इसका magnitude इतना है. Directions कितना हुआ? Yes, anyone? How can you find out the direction? यहाँ theta angle है. Direction कैसे find out करूँगी? This is the magnitude. You can write down. ये मेरे पास magnitude है. तो direction क्या हो जाएगा? You will take tan theta. tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? इस X by Y. x by y. tan theta is x by y. So what is the direction? Theta is equivalent to tan inverse Word x by y. Tan inverse x by y. You have to find out the magnitude and directions of position vector. Magnitude and direction of position vector, magnitude and direction of velocity vectors, acceleration vectors. For this only we are reading vectors. Any doubt here? Aryan, where are you? Kanak? Ma'am. No. No doubt? Ma'am, position vector is only for positive x-axis and positive axis. No, it can be anywhere. It can be anywhere. Minus x minus y minus z plus x plus y plus z. It can be anywhere. पोजीशन वेक्टर में हमारे पास फॉर्मूला समझ नहीं आया. क्या क्या?
मैम थीटा का फॉर्मूला समझ नहीं आया। साइन टेन थीटा क्या होता है बताओ मुझे। टेन थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है y। टेन थीटा x by y लिख सकते हो, परमिशन है। टेन थीटा इज x by y, कैन आई राइट इट? यस मैम। तो उसके बाद इनवर्स वेक्टर, ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स फंक्शन जो आपको पहले बोला गया था ना, मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वो मैथमेटिकल फंक्शंस में ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स फंक्शन आएगा, उसमें देख लो। अगर साइन थीटा आपका 5 है तो थीटा इज साइन इनवर्स 5। tan थीटा x by y है तो थीटा इज tan इनवर्स x by y। अंडरस्टूड? थीटा इज मैम पोजीशन वेक्टर पर इक्वल वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स पर इक्वल वेक्टर्स तो दोनों का मैम इफ मैम अरे इफ x इज इक्वल टू y तो √2x, क्या प्रॉब्लम है? x इज इक्वल टू y तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज √2x। ओके, पोजीशन वेक्टर। Ma'am, in a 3D plane, how do we find the magnitude in position vector? In 3D plane, I have already done for mosquito net. एक क्वेश्चन हम दिए थे आपको, लेट दिस इज ए मॉस्किटो नेट। इससे पहले हम आपको दिए थे क्वेश्चन, ये देखो ये मॉस्किटो नेट है। मॉस्किटो इज एंटरिंग हियर, वन मॉस्किटो इज एंटरिंग। डेंगू टाइम आ गया, बी कॉन्शियस। मॉस्किटो इज एंटरिंग at A, coming out at B. This one is the x-axis, this one is the x-axis, this one is the z-axis, this one is the y-axis. What is the position vector? एक क्यूबॉइड के डायगोनल, क्यूबॉइड के डायगोनल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R, पोजीशन वेक्टर। Ma'am, Is anyone position vector? X whole to I cap square plus y y j square cap plus Ma'am, a A square, B square, plus Z square, whole yj square. plus zk, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। देन व्हाट इज आर मैग्नीट्यूड? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट। अगर ये x हमने क्वेश्चन में क्या दिया था, x सपोज 5 मीटर है, x 5 मीटर है, ये सपोज 3 मीटर है, ये सपोज 2 मीटर है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटो? क्वेश्चन में पूछा गया था, बच्चे इमीडिएटली आंसर दिए थे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के अंडर रूट। यही है पोजीशन वेक्टर। लेकिन इट इज मूविंग अलोंग व्हिच डायरेक्शन, दैट यू हैव टू फाइंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। आप एक्स वाई के डायरेक्शन निकालोगे, tan y by x, y z z x, इतना इजी नहीं है डायरेक्शंस। तो 3 डायमेंशंस में डायरेक्शन जनरली हम नहीं देंगे, आएगा लास्ट में आएगा, एक लामिस थ्योरम बेस्ड आप कर सकते हो। अंडरस्टूड? पोजीशन वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। किसका क्वेश्चन था? कनक, एज इट इज हुज क्वेश्चन? Yes, ma'am. एनी डाउट हियर? बहुत सारे बच्चे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अंशिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आरव ग्रेवाल पूरे मैम, पोजीशन वेक्टर के नीचे जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो किस काम का है? ये पोजीशन वेक्टर तो इसी का एक्सप्रेशन है, ये वेक्टर है। x एक्सिस में i होता है यूनिट वेक्टर, y एक्सिस में j होता है, z एक्सिस में k होता है। ये वेक्टर एडिशन है, ये सारे वेक्टर एडिशन है। और इसका अगर मॉडुलस निकालोगे तो यही आएगा। Okay, ma'am. वी आर कमिंग टू एडिशन। एडिशंस में और थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। वेक्टर्स ऑपरेशन। नाउ वेक्टर्स इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, टाइप ऑफ वेक्टर्स हम कर चुके हैं। अभी आ जाओ ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन वेक्टर्स। ऑपरेशंस आपका पहले है एडिशन, यू कैन ऐड वेक्टर्स। सेकंड यू कैन सब्ट्रैक्ट वेक्टर, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन। Vectors can be added, subtracted and multiplied. Addition of vectors, subtraction of vectors and multiplications of vectors. We'll come across one by one. First, let us take addition of vectors. How the vectors can be added? If you're having vectors like this, there are two types of additions.
ठीक है, there are two types of addition. One is your analytical addition, one is your geometrical addition. एक का नाम आप ज्योमेट्रिकल दे सकते हो, एक एनालिटिकल दे सकते हो. ज्योमेट्रिकल एडिशन में सपोज यू आर हैविंग दिस टू वेक्टर्स, एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है. आप इसको एडिशन कर रहे हो. सपोज ए इज ए वेक्टर, बी इज ए वेक्टर. ये इसका हेड है, ये इसका टेल है. फिर टेल से हेड तक ज्वाइन करो और यहाँ हेड को हेड मर्ज करो, टेल को टेल मर्ज करो. देन दिस इज योर एडिशन आर. You can directly write R is equal to A plus B, but you can never write R is equal to A plus B. If A is your 5 meter, B is your 2 meter, you can never write for this angle R is equal to A plus B. 5 plus 2 7 नहीं होगा. ऐसा समझ में? आप 10 तक किए थे. 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज 10 किलोमीटर. यस और नो? 10 तक आप कोई भी मैथमेटिक्स लेते हैं तो 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज 10 किलोमीटर. वंस यू एंटर्ड इनटू वेक्टर वर्ल्ड, यू हैव टू आस्क हियर 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में है. 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है. ये 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स ईस्ट है. इट विल नेवर बी 10 किलोमीटर. आपको 5 और 5 10 कब होगा? when they are in the same line, they are co-linear vectors. 5 plus 5 10, or they are parallel, A plus B, ये 5 then 10. if 5 is here, 5 is here, 5 is here with any angle, 5 is here, आपका ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कोई भी एंगल में है, it will never be 10. understood? tell me whether it is understood or not. Yes, ma'am. Yes. Yeah. For this only we have to take vector formula, vector addition formula. Vector addition formula में हम दो टाइप के दे रहे हैं. एक तो ज्योमेट्रिकल एडिशन. ज्योमेट्रिकल एडिशन में आप यहाँ ज्योमेट्री कर दिए सिर्फ, आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाले. आप सिंपली लिख दिए R इज इक्वल टू A प्लस B. लेकिन R इज इक्वल टू 5 प्लस 2 नहीं है. We have to find it out. ठीक है. ज्योमेट्रिकल एडिशन में R इज इक्वल टू A प्लस B लिख दिए. लेकिन एनालिटिकल एडिशन जब आप करोगे, when the addition is analytical, you have to find out what is R. For this analytical method, you are having two laws. One is you can write triangle law, or you can write parallelogram law. दोनों सेम है. Parallelogram law of vector addition, law of vector addition. Write down here. You are having triangle law or parallelogram law of vector addition. For triangle law, come here. For triangle law of vector addition, you are having a vector here, you are having a vector here. You have made a triangle by joining the head to head. Understand it? By joining head to head, you have made a triangle here. So this is your resultant vector. R is your resultant. R is your resultant. अभी तक आपको वेक्टर एडिशन सिंबल के अंदर दिया है. A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज R वेक्टर. Here it is your A, here it is your B. Now to do it, this angle is theta. वेक्टर के एंगल जो थीटा होता है, ये एंगल नहीं होता. ये एंगल इज द एंगल विद द रिजल्टेंट. बीटा you can take it beta. This angle is your theta. Yes. Tell me. Ma'am, your book is not clearly visible. It's blown. Anyone else? It's visible. It's visible. थोड़ा सा ऑफ करके फिर ऑन करो. बोर्ड इज क्लियरली विजिबल. Tell me. Now to do it. Yes. This angle is your theta. You have to draw a perpendicular here. Draw a perpendicular here. Then ये मैं दोबारा यहाँ कर रहा हूँ. Draw a perpendicular here. This vector, this one is your B vector. This angle is theta. What can I write for this? इसके वैल्यू कितना लिख सकते हो? Tell me what is sin theta?
perpendicular by hypotenuse. ABC. This one is BC. Sin theta, let this one is BCD. Sin theta is equivalent to P by H. P कितना है आपके पास? DC. DC divided by B vector. Then what is DC? DC can be B sin theta. आगे समझ में, DC को मैं B sin theta लिख सकता हूँ. ऐसे BD को मैं क्या लिख सकता हूँ? BD. यहाँ से यहाँ B cos theta. ये किसको डाउट है? Tell me now. ये किसको समझ में नहीं आया? Tell me if you are having doubts here. Jayant, are you understanding? Jayant. No response. Yes, ma'am, I'm understanding. Ma'am, I'm understanding. Okay, Galaxy. Yes, Are you ma'am. understanding? Arav Grewal, are you understanding? Arav Grewal. Yes, ma'am. चलो, thanks God, ये से आ गया. Now you tell me. Here I can write this one is my B sin theta and this one is B cos theta. Then this is a triangle. यहाँ से यहाँ तक एक complete triangle है. इसमें अगर मैं R का मैग्नीट्यूड R के स्क्वायर लिखूंगी तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगा? AD के स्क्वायर, AD का पूरा AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर. Any doubt here? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज R स्क्वायर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम. सबके बचपन के दोस्त है नहीं? पाइथागोरस थ्योरम एवरीबॉडी नोज. चाहे साइंस के स्टूडेंट है नहीं है, दे ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम. नाउ यू कैरी फॉरवर्ड इट. R स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू AD कितना है? AD इज योर A प्लस B cos थीटा. A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा के स्क्वायर. देन व्हाट इज द आंसर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. Then what is R? R can be written as A square plus B square plus 2AB cos theta under root. आया समझ में? तो R A अब अगर आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में R is equal to A plus B, ऐसे दिया हुआ है R is equal to A plus B. What is R? What you will write? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है R vector is equal to A vector plus B vector. What can you write for R? ये तो ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है. A plus B whole square. A plus B whole square. Who is telling? Ma'am, whole root A square plus B square plus 2AB cos theta. अंडर रूट. अभी समझाया. देखो R इज इक्वल टू, यही तो मिस्टेक अभी भी 12th में बच्चे कर रहे हैं. दो फोर्स ऐसे दिया हुआ है आपको, दो फोर्स ऐसे दिया हुआ है. बच्चे हमें 12th क्लास का अभी प्रेजेंट एग्जाम में भी 5 बच्चे में निकाले हूँ जिनको वेक्टर 0 ये लिखे हैं. 5 + 3 8. अरे 5 + 3 के बीच में एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है. R इज इक्वल टू A प्लस B वेक्टर सिंबल अंडरस्टैंड करो. R आप A प्लस B नहीं लिख सकते. अभी दिखाया था R इज नॉट इक्वल टू A प्लस B. R इज इक्विवेलेंट टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. बार ये आपको 12th में पूरे एंड तक चलेगा. इसी के मार्क्स जाता है फिजिक्स में, क्योंकि वेक्टर्स बच्चे समझते ही नहीं. दिस वन इज R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. नाउ व्हाट इज द एंगल? हाउ टू फाइंड आउट एंगल? tan अल्फा, tan बीटा B you can sin take. theta upon A plus B cos theta. tan बीटा is equivalent to perpendicular. Perpendicular is your B sin theta divided by base. This is your A plus B cos theta. Then what is beta? Beta is equivalent to tan inverse B sin B theta sin divided by upon A plus B cos theta. ठीक है? This is your triangle law of vector addition. Okay? Triangle law of vector addition. Kanak, where are you? Triangle law of vector addition understood? Yes, ma'am. Ma'am, the formula for magnitude will be same for every case in triangle addition. Yes. And in parallelogram law of vector addition also. Parallelogram law of vector addition. Just see here. You are given A here. You are given B here. B vector and A vector are like this.
आप क्या करो, बी के इक्वल वेक्टर्स यहाँ उठाओगे, बी के इक्वल वेक्टर्स आ गया, ए के इक्वल वेक्टर्स यहाँ उठा दो, ए के इक्वल वेक्टर्स, देन दिस इज द डायगोनल, ये जो डायगोनल है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। फिर सेम प्रोसीजर, दिस एंगल इज योर थीटा, यहाँ देखो एंगल थीटा वेक्टर्स के डायरेक्शन के हिसाब से होता है, ये नहीं होता है, इसी में मैक्सिमम मार्क्स कटता है। एंगल थीटा इज हियर, देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, बी, अभी किए थे बी साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, व्हाट इज आर, सेम थिंग, a square plus b square plus 2ab cos theta Whole under root. under root, and this is the angle. For triangle law and parallelogram law of vector addition, we are having same formula, same pattern of derivations. Understood? Yes or no? Ma'am, Triangle, we are finding the magnitude from this formula, no? you are finding the magnitude and we are finding the direction also separately. We are finding magnitude and we are finding directions. Okay, जब ये न्यूमेरिकल्स में आएगा तब जाके समझ में आएगा थोड़ा ये क्यों हम पढ़ रहे हैं. Okay, so now tell me magnitude and directions of parallelogram law of vector addition, triangle law of vector addition is done here. Now you see how can you find out the resultant. आपको बहुत सारे वेक्टर्स दिया हुआ है, how can you find out the resultant, ऐसे वेक्टर्स है, these are the two vectors. रिजल्टेंट आप क्या करोगे, इसी का अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, इसका टेल से स्टार्ट करोगे ये हेड तक, दिस इज योर r1. फिर सपोज मैंने और एक वेक्टर्स दे दिया, ये a प्लस बी, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये c वेक्टर्स, फिर इसका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, ये r2, सपोज ये r2 है, और एक वेक्टर मैंने इसे d दे दिया, इसके रिजल्टेंट r3, और एक वेक्टर मैंने e दे दिया, इसके रिजल्टेंट r4, और एक वेक्टर मैंने e दे दिया, यहां से यहां तक e a b c d e f, ये आपका r5. आपको पूछा हुआ है व्हाट इज r5, व्हाट कैन यू राइट, यू कैन राइट पहले अगर आप स्टार्ट करते हो तो r4 प्लस f वेक्टर, r4 क्या है r3 प्लस e वेक्टर, r3 क्या है, टेल मी, r2 प्लस R2 plus D. प्लस d प्लस e प्लस f, yes or no, then r1 plus c plus d plus e plus f, then you are having आ गया पूरा a plus b plus c plus d plus e plus f. This is your r vector. Finally r5. Is it understood? This is known as your polygon law of vectors. 3 laws होते हैं, polygon law, triangle law, parallelogram law. 3 laws of vectors, triangle law, polygon law and parallelogram law of vectors. Understood? Himanshu, understood? Himanshu, tell me. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Now it's, yes, tell me. मैम कैन वी से कि जो रिजल्टेंट है मैम उसकी डायरेक्शन दोनों जो मैम क्वांटिटीज हैं हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी डायरेक्शन ऐड करके आएगी, हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन आएगी, मतलब डायरेक्शन से इसका तो लास्ट में फाइनल में आएगा, फाइनल वाला जो है ये r4 और f के हिसाब से आएगा डायरेक्शन, फाइनल वेक्टर के आप किसी के भी डायरेक्शन बीच में से निकाल सकते हो. Now you see, if you are having two vectors, आपके पास दो वेक्टर्स दिया हुआ है, 5 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स are acting with an angle theta 30 degree in between them. What is the resultant force? If you have understood, you can do it instantly. Resultant force acting on a particle, 5 Newton, 10 Newton, 30 degree angle में 50. Yes, any answer?
15 न्यूटन 50 नहीं होगा. If they are acting with an angle 0 degree in between them, what is the resultant? 5 Newton, 10 Newton force are acting on a body with an angle 0 degree in between. What is the resultant? If theta is equal to मैम उस वाले का आंसर 125 15 प्लस 5 रूट 15 रूट 3. 5 Ma'am, under root 125 plus 50 root 3. 125 plus 50 root 3 30 डिग्री का. Yes, ma'am. 0 डिग्री का Under root 125. 25. 0 डिग्री का आपके पास. आई एम नॉट गेटिंग आंसर. Ma'am, root Under root 225. 125. Anyone for 90 degree? Then tell me. मैम 90 degree मैम में क्या हो जाएगा? 15 मैम Very 15 good. होगा मैम. Was given 15 this answer. संकेत. Very good. यस मैम. 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सीधे एडिशन है. Cos 0 is Yes, ma'am. Ma'am, I have also gained points for saying 15 Newton. You have also told. Okay. Second 30 degree, 60 degree, 90 degree. 90 degree में बोलो. If these two forces are acting along an angle 90 degree, मैम there is 5 somebody न्यूटन. 90 डिग्री में हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट. कितना हो गया? Ma'am, 5 root 5. 1 root 1. 5 रूट 2. 5 रूट 5 और 5 रूट 2. 5 होना चाहिए मैम. 125 का रूट आ जाएगा क्योंकि 5 रूट 5. मैम 5 रूट 5. yes, ma'am. Yes. root 60 डिग्री में. अरे ये इसमें इतना बड़ी बात नहीं है. आप क्या कर रहे हो? आप एक ही फॉर्मूला मैम लगा रहे हो. रूट 175. आप बोल रहे हो a 75. स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यू आर कीपिंग दिस फॉर्मूला अंडर रूट. तो a स्क्वायर आपका 10 का स्क्वायर, b स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 5. cos थीटा जो एंगल दिया हुआ है, सपोज cos 0 डिग्री दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? cos 0 One. cos 0 कितना होता है? 1. मैम हाँ, तो 1. कितना हो जाएगा? 1 में तो करना ही नहीं है. 10 न्यूटन यहाँ है, यहाँ 5 न्यूटन है, तो 15 सीधा लिख देना चाहिए. इसको भी कैलकुलेट करके 15 आएगा. अगर मैं इसको cos 60 डिग्री करूँ, cos 60 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा. जिनको समझ में मैम Kana, are रूट you understanding? 175. Yes, let me ask one by one. Ma'am, Kana, I are want you to understanding? ask, ma'am, I'm asking if it is 90 degree in the last case, तो वो दोनों parallel नहीं होंगे? 90 डिग्री में पैरेलल होगी. दो वेक्टर्स के Okay, बीच ma'am, में एंगल perpendicular 90 डिग्री होंगे. है, तो पैरेलल होंगे. सुन जाके पानी पी के आओ. कनक, नहीं मैम, perpendicular है. नहीं जाओ पानी पी के आओ. ठीक है. हम तो ये समझ में आ गया कहाँ कहाँ कैसे एंगल चेंज होते ही एडिशन चेंज हो जाता है. अंडरस्टूड? एंगल चेंज होते ही एडिशन चेंज होता है. ये सुनो. नाउ यू टेल मी, इफ यू आर गिवन resultant of two vectors, resultant of two vectors, you are given two vectors a and b, gives resultant 3a square plus b square under root. What is the angle between them? इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? कितना एंगल में इंक्लाइन थे कि रिजल्टेंट 0. ऐसे क्वेश्चन 90. ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है ना. प्रॉब्लम है कि ये फिजिक्स है. एस्ट्रोलॉजी में इमीडिएट आंसर आता है. नहीं देख रहे हो? हर गली में बाबा लोग बैठते हैं, कुछ भी पूछो ऑल इन सडन आंसर देते हैं. कभी गए हो? एनीवन? हिमांशु, कभी कोई No, बाबा ma'am. कितने जल्दी आंसर देते हैं देखे हो कभी टीवी में? कुछ भी पूछो. गौतम, मैम ए और बी की तरफ से बताइए. A by B ठीक है. 90 Yes. डिग्री पे. कितना है एंगल? मैम A by 90 B. डिग्री. 90 डिग्री. 90 डिग्री इज नॉट द करेक्ट आंसर. 0 degree. Excuse me, ma'am. Cos यस, हम A और B की टर्म्स में बताना है क्या एंगल?
हाँ और क्या, क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? A upon B मैम। मैम cos इनवर्स A by B आ जाएगा। मैम A by B है। ए बाई बी है। यस मैम Cos cos inverse Ma'am, इनवर्स root 3 by B. cos inverse a by b. Yes, ma'am, A by B. How to do it? Again the same formula, r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। एक ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, विल कंटिन्यू इट ऑल्सो। आप इसमें आर स्क्वायर लिख दो, अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना होगा? 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट के स्क्वायर, यहाँ क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। देन व्हाट इज cos theta? a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर कट गया, ठीक है। cos स्क्वायर कितना है? 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, कितना रह गया फाइनली? a by b। देन व्हाट इज थीटा? cos इनवर्स a by b। दो जॉब गिवन, करेक्ट आंसर वेरी फ्यू, सब लोग नहीं दिए, बहुत ही कम बच्चों का करेक्ट आंसर आया। ओके, एनी डाउट हियर? किसको डाउट है बताओ जल्दी, किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा। ओके, सपोज आई हैव गिवन यू टू वेक्टर्स, आई हैव गिवन यू टू इक्वल वेक्टर्स ए। मैम लेकिन ये एंगल मैम दो वेक्टर्स के बीच में थोड़ी ना, मैम हमें रिजल्टेंट के बीच में बताना था ना, रिजल्टेंट का यहाँ थीटा है ना, रिजल्टेंट के बीच में एंगल हम बीटा लिए थे सर। मैम ये तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है मैम, हमें तो रिजल्टेंट का बताना था ना। क्वेश्चन में तो वही पूछा है, व्हाट इज द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट के लिए तो बीटा होता है। आई हैव नॉट आस्क्ड बीटा, आई हैव आस्क्ड थीटा। अंडरस्टूड? यस मैम। किसके डाउट था ये? मैम मैंने गलत क्वेश्चन ही मैम सुन लिया था मैम। अच्छा, ये एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा हुआ था। टू इक्वल वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a gives resultant also a. What is the angle between them? तो 180 डिग्री। कैसे? ये फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, बाबा वाला मेथड हो गया। मैम पैरेलल होंगे पैरेलल होंगे तो कैसे a प्लस a 2a हो जाएगा भाई? Ma'am, 60 degree. Ma'am, can you repeat the question? Question is written here. Two equal vectors, magnitude a gives resultant also a. Find the angle between them. 120 Ma'am, 120. 120 degree is the correct answer. 120 degree is the correct answer. What is asked here? A vector. A square is equivalent to a square plus 2a square cos theta. Question क्या करें? तो इसमें cos theta कितना है? Tell me what is cos theta? -1/2 -1. Then theta 120 degree. This is तो मैम -1/2 नहीं होगा, -1/2 है। हाँ, थीटा 120 डिग्री में -1/2 ही होता है। ठीक है, एनी डाउट हियर? No, We'll continue vector addition tomorrow. We'll continue vector addition. Vector addition uncountable बोलते हैं कि infinite amount, 1000 प्रॉब्लम भी कम पड़ेगा vector addition। इतना हेवी क्वेश्चंस होता है इसमें। But we will start multiplications also. Yes, tell me, what is the attendance today? Arab Grewal, are you present? Arab Grewal, ये पता नहीं अटेंडेंस के टाइम कभी नहीं आता है। आरब ग्रेवाल अभी भी दिखाई जा रहा है लेकिन नो रेस्पॉन्स। हैंड रेज करो आरब ग्रेवाल। मैम हाउ डिड यू फाइंड आउट थीटा 120? टेल मी cos थीटा इसमें से कितना होगा? a स्क्वायर 2a स्क्वायर को इस साइड में ले जाओ, -a स्क्वायर हो मैम गया। -1/2 तो आ गया, बट थीटा कैसे मैम जो फॉर्मूले में लगाते हैं वो कैसे निकलता है?
cos मैम थीटा द इनवर्स ऑफ cos थीटा। नहीं, इनवर्स क्या जरूरत है, आप cos थीटा के टेबल याद करोगे ना, आपको तो प्रायोरिटी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिया हुआ था याद करने के लिए। cos 120 डिग्री माइनस हाफ है, टेबल में लिखा हुआ है। आरव ग्रेवाल नो रिस्पॉन्स। कितने दिन तक इसको मैं एब्सेंट दे रहा हूँ, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हैंड रेज नहीं है। आरव ग्रेवाल एब्सेंट, आरव शर्मा, अग्निश नो रिस्पॉन्स, ऐश्वर्या नो रिस्पॉन्स, आकांक्षा Present. ऐश्वर्या प्रेजेंट, ऐश्वर्या प्रेजेंट, Yes, ma'am. आकांक्षा प्रेजेंट, अंश, अक्षिता, बीच में अग्निश Present, मैंने ma'am. absent दिया। अग्निश आर यू प्रेजेंट, मैंने एब्सेंट दिया। अग्निश, अक्षिता प्रेजेंट, अमन प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, आर्यन, आर्यन नो रिस्पॉन्स में चल रहा है। आयुष मैम आयुष प्रेजेंट, भव्य मिश्रा नो रिस्पॉन्स, दमन Ma'am, present. दमन प्रेजेंट, मैम भव्य मिश्रा प्रेजेंट। यस मैम प्रेजेंट। भव्य मिश्र प्रेजेंट में दे दिया। दमन प्रेजेंट, देवेश देवांश देवांश नो रिस्पॉन्स, दृशन प्रेजेंट मैम। ओके दृशन प्रेजेंट, गौतम कक्कर प्रेजेंट। जयंत नो रिस्पॉन्स, कनक मैम गौतम कुमार ऑल्सो प्रेजेंट। हाँ गौतम कुमार लगा दूंगी, यू कैन गो। कनक प्रेजेंट नो रिस्पॉन्स, कनक है। कुंजल कुंजल आर यू प्रेजेंट, लक्ष्य आर यू प्रेजेंट, यस मैम। मैम आरव प्रेजेंट। आरव कौन है, कौन से आरव है ये? मैम कौन से आरव ग्रेवाल आपको कोई मैसेज दे दिया है क्या, आ जाओ, आप अभी तक तो एब्सेंट थे। लीना है प्रेजेंट, प्रज्ञा 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 नो रिस्पॉन्स, ऋषभ ऋषभ, शाश्वत नो रिस्पॉन्स, श्रेया Present, ma'am. श्रेया प्रेजेंट, सिद्धांत सिद्धांत शर्मा, सिद्धांत जैन प्रेजेंट। सिद्धांत जैन प्रेजेंट, ओके। वानी Present, ma'am. प्रेजेंट, वंशिका Present, ma'am. वंशिका तुम आजकल आंसर नहीं दे रहे हो, कहाँ हो? Ma'am, I gave answer today only. ओके। अनुमिता Present, ma'am. ओके। संकेत प्रेजेंट मैम। संकेत प्रेजेंट, नेक्स्ट कान्हा प्रेजेंट मैम। दीक्षिता Present, ma'am. दीक्षिता आज तुम्हारा आंसर नहीं सुनाई दिया। शिवांश शिवांश नो, गैलेक्सी गैलेक्सी मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट, साहिल प्रेजेंट। ओके। Present. शिवांश प्रेजेंट है क्या? साहिल मैम। साहिल प्रेजेंट मैम गैलेक्सी मैम। हाँ गैलेक्सी तो दे दिया मैंने। गौतम कुमार प्रेजेंट, नेक्स्ट अंशिका अंशिका यू आर प्रेजेंट, अंशिका। भव्य भरद्वाज Present, ma'am. मैम हैव यू मार्क माय हिमांशु? हिमांशु प्रेजेंट, रोहन रोहन नो रेस्पॉन्स, मानव जायसवाल चेंज हो गया सेक्शन, ओके। और किसका अटेंडेंस नहीं हुआ अभी तक? आरव ग्रेवाल आर यू प्रेजेंट? आरव ग्रेवाल यस मैम। कहाँ चले जाते हो, आंसर भी पूछने के लिए टाइम नहीं देते हो। आप कब पढ़ना स्टार्ट करोगे? मैम वो आता नहीं था मैम। बोल तो देते। नेक्स्ट मैम प्रज्ञा प्रज्ञा आपका प्रेजेंट नहीं लगा, देवांश नहीं लगा, अग्निश नहीं लगा, यू कैन लीव। अग्निश व्हाट्स योर नेम? मैम ऋषभ सिंह। ऋषभ, ऐसे ऋषभ भी ऑप्शन दी हूँ मैं। ऋषभ ओके, यू कैन लीव। ऋषभ प्रेजेंट, शाश्वत तिवारी